હલો, હાય. હું રવિ બારોટ. ફનરંગના મજેદાર સમાચારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. જામનગર જિલ્લાના જોડિયા તાલુકાના વાવડી ગામે રિલાયન્સ વીજ કંપનીએ મંદિરની જગ્યામાં જબરજસ્તી વીજ પોલ નાખવાનું શરૂ કર્યું. એટલે આખા ગામે તેનો વિરોધ નોંધાવ્યો. અમારું ગામ વાવડી જોડિયા તાલુકામાં આવે. અમારે અહીંયા અત્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી વાળા થાંભલો ખોડવા આવ્યા 765 કેવીનો હે. અમે જે માંગ કરી હતી એ લોકોએ કીધું હતું કે કાંઈ વાંધો નહીં, અમે મંદિરની જગ્યા છે તો અમે કરી દેશું, પણ માંગ એને પૂરી કરી નથી. અને એમને ખાડા ખોદી નાખ્યા બળજબરીપૂર્વક. લોકો અત્યારે આવે પ્રોટેક્શન લઈને આવ્યા પોલીસ દ્વારા નથી. કલેક્ટરનું એમ કહે કે આમ લખાણ છે, ઓલું છે, જે તે XYZ વાતું કરે અને ખાડા ખોદી નાખ્યા. અત્યારે પોલીસ વાળા લઈને આવ્યા કે આ નજરે પડે, જોઈ લ્યો, તમે દેખાડી દો બધા. અને ગામ લોકો અમે ભેગા થયા અને કામને નથી કરવા દેતા. અમે ગ્રામજનો ભેગા થયા. અમારી માંગ એટલી, અમારા ખીચામાં રૂપિયો જોતો નથી. અમારે જે હોય અમારે જગ્યા માટે જોઈએ, ખીચામાં રૂપિયો અમારે નથી જોતો. બળજબરી પૂર્વક કરવા માંગે કામ, અને અમે રોકાવીને બેઠા. અમારી માંગ એક જ છે કે અમારા મંદિરમાં કામ આવી જાય. અમારે એ જોઈએ, અમારા ખીચામાં રૂપિયો જોતો નથી. અમારે બહુ વહેલાથી વર્ષોથી અમને સાંભળતું નથી કે અમારા દાદા પરદાદા એ વખતથી અમે જમીન હાચવીને બેઠા, એમને પડી કાગડિયા ગામ તળમાં જમીન આવે. ઇન્ડોનેશિયામાં ચોરી કરતા પકડાયેલા 4 ચોરને ડક્ટ ટેપથી લપેટી સજા કરાઈ એવો વિડીયો વાયરલ થયો છે. Putuku tolong anakku nak. Putuku iku lho Mas Bit. Sing main di Mama Lela Mas Bit. Sing. Jelekon katanya aku sing wani lah. Loh, ditantang di Montreal. Sing. Jelekon katanya bapak aku sing. Operasi sekolah Bogor sama. જોકે આ વિડીયો ચોરીનો નથી, પરંતુ પૂર્વી જાવાના મલંગ ખાતેના કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સને મળેલી ટિકટોક ચેલેન્જનો છે. યુપીના કૌશંબીમાં 26મી જૂને એલપીજી ગેસ ટેન્કર ટોલ પ્લાઝા સાથે અથડાયા બાદ અગ્નિકાંડ સર્જાયો, જેમાં ડ્રાઈવર જીવતો સળગી ગયો અને સાથે 16 બાઇક અને 2 કાર પણ બળીને ખાખ થઈ ગઈ. માઉન્ટ આબુની હોટલના ધાબા પર દીપડાએ કૂતરાનો શિકાર કર્યો. છત પર સૂતેલા કર્મચારી ભાગ્યો નહીં, પણ શાંતિથી સૂઈ રહ્યો, એટલે જ કદાચ એનો જીવ બચ્યો.
પૂર્વ ભાજપી નેતા મનીષ કશ્યપે ઇથેનોલ ભેળસેળ મામલે ગડકરી પર બળાપો કાઢ્યો. મોદી સરકાર E20 ઇથેનોલથી ગરીબ મધ્યમ વર્ગની જિંદગી બરબાદ કરી રહી હોવાનો આક્ષેપ. अब जरा बताइए नितिन गडकरी जी, ड्रामा लगा के रखे हैं आप, देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी जी. तो जितना मोटरसाइकिल और कार वाला है, पेट्रोल गाड़ी वाला है, सब अभी रो रहा है. और ड्यू टू ओनली वन रीजन, नितिन गडकरी आप हैं. किसी के गाड़ी में चिट्टी लग जा रहा है, किसी का गाड़ी बीच में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसी के गाड़ी में एथेनॉल का मात्रा ज्यादा निकल जा रहा है. कहां से हम लोग अपने बाप के यहां से इथेनॉल खरीद के लाए हैं क्या? कहां से लाए हैं हम लोग इथेनॉल? हमारा कंपनी है एथेनॉल का, हम बनाते हैं एथेनॉल. कहां से इसका टेस्ट हुआ होना चाहिए कि एथेनॉल है क्या नहीं है, किस प्रकार से आप लोग मिलवाते हैं. झूठ बोल रहे हैं आप लोग. 20% एथेनॉल बोल के देश को बर्बाद कर दिए. अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 10% एथेनॉल चलता है. मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो सारा डिटेल्स मुझे आया. गलत सलत सोशल मीडिया पर अफवाह फैलवाते हैं आप लोग. यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकांश देशों में अभी भी E10 10% समान मिश्रण चलता है. भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां E20 चलता है. E20 कितने देशों में चलता है? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने. 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में. अभी नया गाड़ी है. बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए. कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना. नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाए? कहां मिलेगा पेट्रोल बताओ? जहां से खरीदने जा रहे हैं वहां पे देखो ये क्या स्थिति हो रहा है. इसके अंदर कचरा मिल रहा है, कचरा मिल रहा है. लाखों वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. मोटरसाइकिल वाला परेशान है, कार वाला परेशान है, हर कोई परेशान है. क्यों टैक्स दिया हमने इस पे? क्यों दिया है? 18 लाख रुपया टैक्स क्यों दिया है इस गाड़ी पे हमने? इसीलिए दिया है. अब बताइए, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा. E20 पहले आपने सारा मापदंड पूरा किया ही नहीं और उसके बाद से आपने शुरू कर दिया E20 डालना. जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई. E20 लो, E20 लो, E20 लो. कहां से E20 ले हम लोग और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है. सारी की सारी मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे और 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है. और हम लोग साबित भी नहीं कर पाएंगे. सरकार के आगे हमारा सिस्टम नहीं साबित कर पाएगा. हम लोग ना पेट्रोल पंप ढूंढ पाएंगे और ना ही साबित कर पाएंगे. बस कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग इस देश में रहेंगे और जब चाहेगा तब सरकार हम लोगों को मसल के रख देगा. बस हम लोगों का कीमत, आम आदमी का कीमत भारत में ये राष्ट्रवादी सरकार के दौरान कीड़े मकोड़े की है. अगर देश के सरकार से सवाल पूछोगे तो पहले तो ये देशद्रोही साबित कर देंगे, उसके बाद से ये पूरा सिस्टम लगा देंगे और आपको गलत किसी भी हाल में साबित कर देंगे. देखिए क्या किया जाए, इसका खुलवाइए, सारा चेक करवाएंगे. सारा कहां से आया इथेनॉल, कौन बनाया इथेनॉल, कौन डाला पेट्रोल में इथेनॉल ज्यादा, सारा चीज चेक होगा. 20% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ મામલે દેશભરમાં વિરોધ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સરકાર આ વિરોધને કંઈ ગણી રહી નથી. ત્યારે આ મામલે અરવિંદ કેજરીવાલ જે કહી રહ્યા છે તે સાંભળવા જેવું છે. 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है. 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा. ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी. जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई. केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला. ये झूठ है. आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा. और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते. एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना. पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट्स में या मुझे डीएम करके बताइए। વડોદરાવાસીઓ માટે સારા રસ્તા અને બ્રિજ બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયેલા સત્તાધારીઓ હવે કમાટી બાગમાં 14.5 કરોડના ખર્ચે મગર આકારનો બ્રિજ બનાવશે. ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ થશે એવું જાણવા મળ્યું છે. અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીમાં ગુજરાતીઓએ જાત બતાડી. નવા સ્ટોરના ઉદ્ઘાટનમાં કોલાહલ મચાવી દીધો. સ્ટોરવાળાઓને પોલીસ બોલાવી પડી. ગુજરાતીઓએ ભારે ગર્વ લેવા જેવો આ વિડીયો છે, જુઓ. કેટલા ખાસો લા અડધી બેગ ભરો લે. અરે બીજા પરવડ આવી ગયા ભાઈ. આ કાકા તો કેટલા લે છે, આટલા બધા ભરાય તમે? કાકા લેવા દો, બહાર નીકળો હવે, નીકળી જાઓ, નીકળો, ભરો લે, ભરો અમને નીકળવા દો. બેન તમે તો કારના લો છો, ઓકે? હવે તો નીકળો, બીજા તો લેવા દો. બાકી નાખી બેગો ભરતો એવું થોડું ચાલે, કારણ કે તમે એકલા એવું કરો બધા પર સાત મોકલી આપો. કેટલા કરવાનું બેન તો નીકળતા જ નથી, બોલો નથી. મારે છે નીતિન ગડકરીએ હમણાં કહ્યું કે E20 મામલે અમને બદનામ કરવાનું કાવતરું રચાયું છે. ત્યારે લોકોએ E20 ને બાજુ પર મૂકી એમના જૂના ભાષણના મીમ્સ બનાવી દીધા છે. એ પણ જોવા જેવા છે. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा.
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। Wake up to reality. તો જોતા રહો ફનરંગ ન્યૂઝના મજેદાર સમાચાર. હું રવિ બારોટ, તમારો યાર.